Welcome, my dear students. You are studying with YPS Academic Solutions. Today we will solve two questions of CBSE board exam based on AP. So, question number 9, solve the equation -4 plus in bracket -1 plus 2 plus dot 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 plus x is equal to 437. ये CBSE 2023 स्टैंडर्ड में आया है. Solution: given equation -4 plus in bracket -1 plus 2 plus dot 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 plus x is equal to 437. So here second term is -1 and first term is -4. So a2 minus a1 is equal to -1 minus in bracket -4 is equal to 3, and a3 minus a2 is equal to 2 minus in bracket -1 is equal to 3. So common difference is same. Therefore given equation is in AP with D common difference is equal to 3 and first term is equal to -4. Now sum of the equation is given 437. Sum of the equation is given 437. So we know that Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 multiplied by d. So now put all the values. Sn is equal to 437 is equal to n by 2 in bracket 2 multiplied by -4 plus n minus 1 multiplied by 3. D की वैल्यू 3, A की वैल्यू -4. सो 437 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट इनका मल्टीप्लाई किया -8 प्लस 3 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया 3n -3. इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 874 इज इक्वल टू 8 और -3 को ऐड कर दिया तो -11, साथ में n का मल्टीप्लाई कर दिया तो -11n प्लस n का 3n से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3n स्क्वायर. सो 3n स्क्वायर -11n इज इक्वल टू 874 is equal to 0. So this is equation 1. So equation 1 is a quadratic equation. To solve it, split midterm as under. तो यहाँ पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म -874 है. सो नाउ वी विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 874. सो 3 से डिवाइड किया तो आया 874, 2 से डिवाइड किया तो आया 437, फिर 19 से डिवाइड किया तो आया 23 और 23 से डिवाइड किया तो आया 1. तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये हो गए. इनका प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाइड बाई 874 के बराबर है. अब इन प्राइम फैक्टर्स को हमको इस तरह से लेना है कि इनका डिफरेंस जो हमारी मिड टर्म के बराबर होना चाहिए. तो 19 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 57 एंड 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 46. तो 57 में से 46 को हम जब माइनस करेंगे तो आएगा 11 जो कि हमारी मिड टर्म है. सो वी विल rewrite the equation as under. So 3n square minus 57n plus 46n minus 874. So 3n, अब हमने इनमें से जो है फर्स्ट 2 टर्म से 3n कॉमन लिया तो n -19 प्लस लास्ट के 2 टर्म से हमने 46 कॉमन लिया तो n -19 इज इक्वल टू 0. अब n -19 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 3n, यहाँ से बचा +46 इज इक्वल टू 0. अब n -19 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखा तो n -19 इज इक्वल टू 0 और 3n + 46 इक्वल टू 0. तो
तो यहाँ से आया n इक्वल टू 19 और यहाँ से आया n इक्वल टू -46/3। तो n कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, ये इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। सो n इक्वल टू 19 और n इक्वल टू -46/3, n कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, therefore n is equal to 19. So x is equal to last term is equal to general term en is equal to -4 plus 19 minus 1 multiplied by d, because हमारा फॉर्मूला है en is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. So x is equal to en is equal to -4 plus 19 में से 1 को माइनस किया तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 3, डी की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू -4 प्लस 54, 18 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 54 में से -4 किया तो x इज इक्वल टू en इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू निकल के आई 50 के बराबर। नाउ वी विल डू द next question. Question number 10. So that the sum of an AP whose first term is A, second term is B, and the last term is C is equal to B plus C minus 2A in one bracket, in other bracket A plus C upon 2 in bracket B minus A. ये क्वेश्चन CBSE 2020 में आया है। Solution: given first term is equal to A, second term is equal to B, last term is equal to C. So D is equal to second term minus first term is equal to B minus A, and C is equal to last term is equal to AN general term is equal to A plus N minus 1 multiplied by D. D की यहाँ वैल्यू B minus A है, बिकॉज हमारा फॉर्मूला है AN is equal to A plus n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है इसलिए यहाँ पर a रख दिया और ये d की वैल्यू रख दी। तो c माइनस a, अब a को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 b माइनस a, दिस एम्प्लाइज c अपॉन a अपॉन b माइनस a। b माइनस a को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो ये अपॉन में आ गया, c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1। दिस एम्प्लाइज c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए इज इक्वल टू n। दिस एम्प्लाइज n इज इक्वल टू, अब इसका हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आया b माइनस ए, तो यहाँ आया c माइनस ए प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू ए और ए को ऐड कर दिया तो c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। सो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, ये हमारा फॉर्मूला है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दिस एम्प्लाइज एस एन इज इक्वल टू c प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a, ये हमने यहाँ n की वैल्यू रख दी जो अभी हमने ये कैलकुलेट की है n की वैल्यू, और ब्रैकेट में a प्लस सी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यदि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे किस चैप्टर या टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएं, और मेथड या सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी सजेशन दे सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।